नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे DSPL आयोजित क्रिकेट नॉट आउट विथ लेजंड्स या कार्यक्रमामध्ये. आज मी तुम्हाला अशा खेळाडूशी भेटवणार आहे ज्यांनी क्रिकेटवर अतिराज्य गाजवलंच नाही, पण आपल्या नावाची एक अशी छाप सोडली की चांगल्या भल्या मोठ्या फलंदाजाला विचारात सोडलं काय मी या गोलंदाजाच्या समोर कुठली फलंदाजी करू. चांगले फलंदाजांनी आपल्या कर्णधाराला सांगितलं सुद्धा, जर हा गोलंदाज पहिलं षटक टाकत असेल तर मी ओपनिंग करणार नाही. आज मी 3 डाऊन या 4 डाऊन जाणार, ह्याचे 6 चेंडू निघून जाऊ दे. असं करत असताना टेनिस क्रिकेटला एक असा नामवंत खेळाडू भेटला. आत्ता सुद्धा ज्या ठिकाणी टेनिस क्रिकेट चालतं या खेळाडूचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. द मॅन फ्रॉम टिळकनगर, द मॅन विथ द गोल्डन आर्म्स, नन अदर दॅन सर सतीश शेट्टी. थोड्याच वेळात मी सरांना कनेक्ट करतोय. हॅलो सर, आम्ही सरांना कनेक्ट करतोय. थोडासा डिस्टर्बन्स. हेलो. हाय सर, कैसे हो? या हाय. बस फर्स्ट क्लास. सर वॉल्यूम ठीक आ रहा है आपके पास? हाँ, मेरे पास तो ठीक है. व्हाट अबाउट यू? मेरे को भी आपका वॉल्यूम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है. सर सिर्फ कैमरा स्टिल रखना, कैमरा स्टिल रखना सर. ओके सर, हे आहेत आमचे खेळाडू ज्यांनी कित्येक वर्ष टेनिस क्रिकेटवर अतिराज्य गाजवलं. सतीश शेट्टी सर आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. सतीश शेट्टी सर, वेलकम टू आवर शो क्रिकेट नॉट आउट विथ लेजंड्स. या शो मध्ये आपलं हार्दिकाचं स्वागत आहे. सर, लॉकडाऊन कसं चालू आहे? रुटीन चालू आहे. म्हणजे इट इज लाईक आय हॅव बीन बिझी विथ माय ऑफिस वर्क. माय कंपनी इज वन ऑफ द एसेन्शियल सर्व्हिस कॅटेगरी and since we are supporting government customers, so I've been going to the office also once in a while. Lockdown, I am busy and I am occupied rather. सर, क्रिकेट की जर्नी एट द एज ऑफ 21 स्टार्ट हुई फ्रॉम तिलक नगर. वो कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली क्रिकेटिंग जर्नी मेरा पहला स्टार्ट हुआ था मेरे स्कूल के टाइम में. आई मीन इन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड वी प्लेड इंटर स्कूल टूर्नामेंट एंड इन दैट in the finals we played with Amchi Shala. So Amchi Shala was a very good team that time, and that was the first time when I got the best bowler award, and from there actually my cricketing career started. But then after 12th what happened was I had to go to Dharwad for my engineering. So and it was in 1982, and then I came back in 1986. So cricketing journey, actually it was like Mangesh Adatrao took me to some I mean he started taking me to tournaments, and we played for CP11 first, and from there we actually we used to play only within this area, Chembur, Kurla, Ghatkopar and Trombay. So those were those small tournaments. Then later on we started playing for I actually started playing for Playboy, and that was the time when actually the cricket turning started point from my came side. in your career. That was the turn. I would say that was the time when I actually started going out and playing. Before that we used to play only within the colony. So and the first tournament which I actually remember now is the one which I played in Barkha. Barkha used to be one of the prestigious tournament those days. So that was the time when Mangesh Adatrao took me to Barkha, and there I showed my class, and then that was the time when people started recognizing me. So Barkha was the tournament where I actually started my career, cricketing career. Then Barkha was the first tournament which I played. So before that, when you played inter school, after that Yeah. you played in Tilak Nagar.
Yeah. Where did Mangesh saw you playing and he picked you up? Actually, what happened was our building, the Super Slammers, we used to organize a rubber ball tournament. So there, actually, I met all these stalwarts like Ramesh Sharma, Mangesh Adat Rao, and Raja Adat Rao, and from there, and I used to also play for in that tournament, and then वहाँ से मेरा journey start हो गई. So moving forward, how was the family support? Family, absolutely no issues, because क्या हुआ था, I mean, when I started the tennis cricket tournaments, when I started going to the tennis tournament, I had already finished my engineering and I had a job in hand. So Saturday, Sundays were not a problem at all as far as my family was concerned. So they used to say, okay, it is fine if you are, I mean, till the time I was working, it is not an issue for them, you know. So that is how it was. So because you manage your job, you manage your studies, you manage your cricketing career. How this Ha. three part played a role? See, what happened was when I started my job in the initial stage, uh, I had a field job basically. I had a field job. So what used to happen is in that field job, I used to finish my work, the daily work, and I used to come back by say 5 o'clock in the evening, and we used to go and practice. We here I would like to take this opportunity to thank a few people, especially Agnel, Anand Shetty, Vaibhav, and Andya More. So what they used to do is they used to prepare wickets for us in the weekends, you know. In the weekends, they used to prepare wickets for us, and we used to practice throughout the week on the same wicket. And I mean, amazing help it was from their side, you know. So playing in Tilak Nagar, the Hmm. building matches, Ha, inter-colony. yes. I remember more than the inter-colony, I remember those building matches. I mean, every building used to have a team of their own. So we building number 9 also had a team, and then we used to play for that 11 rupees matches. You know, uh, we used to collect one rupee from each player, and then you used to go and play that matches. So that is how it was. It was fun. It was real fun. I mean, that was our one way of practicing. So but playing in Tilak Nagar, few tournaments. What are the memories when you started playing in Tilak Nagar? Tilak Nagar, it was like a normal this thing. I mean, I remember there were players like Naresh Sawant, Vilas Sawant, Hemant Mapuskar. They used to be, I mean, one of the best players of the colony. Ramakant Pawar, Satish Rane, Mangesh Adat Rao, Bunty Satam. So whenever we used to play against them, I mean, we used to be very happy because we used to actually learn a lot from them. You know, I mean, in Tilak Nagar there were bundle of players emerging out of Tilak Nagar. So we used to enjoy playing with these people. So then how was your tennis ball journey? When it started from Tilak Nagar, it went to a professional Mumbai tennis cricket. How was that journey? See, our actual journey started when Ramesh Sharma, he picked few players from our colony. What he did was from all the teams, he picked one player, and then he picked some 3 players from RCF: Avinash Jadhav, Deepak Kedare, and Shailu Mishra. And he also added Ajit Putran in our team. So then this way, what we did was we formed a excellent team with, I mean, and then we started playing across Mumbai. Then that was the first step that was taken by Ramesh Sharma, and we are all indebted to him. You know, I mean, he was one person who actually was instrumental in holding the entire team. It So is when you still a start, mystery. Actually, it is still a mystery that how Ramesh Sharma used to manage the entry fees for those tournaments. I mean, whenever Ramesh comes on this show, I think you should ask him this question: how he used to surely, manage this particular.
Surely we will ask him because even I played under the captainship of Ramesh sir. हाँ. Sir, you have played a lot of tournaments in Mumbai, out of Mumbai. You got a lot of awards, lot of memories you have. We want to know Playboy. While playing to Playboy, what was the matches, a dream spell, a turning Well, moment? with Playboy, I wouldn't remember a particular match because I have a very short memory as far as this thing is concerned. But yes, I know that we used to play. We used to go to the Bhainder. A lot of matches we played in Bhainder and all. So there were many matches which we played for Playboy. But then actually after we stopped playing for Playboy and once this Pressy team was formed, we had a few people from Playboy also playing for us, you know. So the entire Tilak Nagar had one team, and that was Press 11. So all the best players were playing for Press 11, including these three from RCF and Ajit Putran from Goregaon. So if you ask me from Pressy, I think there are a lot of memories, definitely. So yes, Pressy uncle gave a lot of big support to form He this team. always, I Playboy mean, to Pressy. yes. He used to, fill entries for all the tournaments. He used to give us his T-shirts, then shoes and all, and never used to ask where his money used to go and all, because we used to go and give his the trophies and all to him. That was the arrangement that was there those days, you know. The sponsors, whoever was the sponsor, they used to sponsor us, and then they used to take the trophies, whatever we used to win. That is how it was. So in that time, balls, it was MRI white ball. Nowadays it is 10x. Lot of Yes. difference. In that days, bowler used to defend the score of in the 8 overs a score of 30, 32 that time. And today's generation, when you are playing for 6 over matches, the score moves on to 100 runs, and batsmen come and chases that. What do you say about the ball quality? No, I beg to differ this, because though MRI ball was not that hard, but still people used to score ball to ball. We used to play 8 overs matches, more than 40, 45, 80, 45, 50 people used to score. There were some good teams like Matchless, Rahul 11. They used to score more than 40, 50 runs. So it is not that it was easy for the bowlers there. There were some batsmen. Avinash Jadhav used to hit 3 sixes in one single over. It is Santosh Satilkar used to hit sixes. So it is not that the MRI ball was, though it was not hard, but the teams used to score. Even we used to score 50, 60 runs in 8 overs. So, it is not that. Actually, the beauty of that ball was that in the initial 2-3 overs, there used to be fur on that ball. So, after that fur is gone, then it was easy for the batsman to score runs, you know. And so, what we used to do is, I used to bowl the first and the third over, because I was an expert in bowling those first 2 overs with fur. Whereas Ajit Putran and Santosh Satilkar used to bowl the last 4 overs. Because so we had bowling qualities in that way. So that is how it happened, you know. So at that time when you used to bowl, when batsmen used to not score a big score on the scoreboard, your 2 first overs, first and third over, were always crucial. They were always crucial. There were matches where we won when the opponent scored. We scored just 25, 26 runs. Also, we managed to win a lot of matches. I don't remember all those matches, but then I'm sure Ramesh and Ajit Putran would talk about each and every matches that we have played, you know. And the best part was that whatever we used to score, whatever our team batsmen used to score, we were confident of defending that total. Because from 5 to
6 years we actually ruled Mumbai. Hello. Yes, sir. Yeah. So 5 to 6 years we were on the top. I mean, we were the top teams along with Matchless, Rahul 11 and all. But then we ruled for 5 to 6 years, I would say. So at starting when Pressy started, lot of struggle you have done, lot of struggle all team Yes, members in fact, have we done. lost. We must have lost around. I mean, more than 30 semi-finals at trot. We actually lost 30 semi-finals on a trot, and it was very difficult. But I really appreciate that Pressy uncle. He was always backing us, and I mean, and then later on, once we started winning, I mean, then there was no looking back. I mean, from the year 1992 to 97, we were probably the best team in Mumbai. In Mumbai. Yeah. Sir, when you bowls, keeper is a main part because every dot ball is very important in limited overs matches, and Yes. keeper has to play his role because miss keeping can create an issue. One run can make bowler into a pressure and batsman gets some confidence. What do you say about the keeper? We initially when I played, Chetan Chacha was our keeper, so he was also one of the best keeper in Mumbai. And later on, when the Pressy team was formed, we had a keeper who was no less than a Dhoni, Ramakant Pawar. I mean, I would credit a lot to him because in the I remember he must have taken stumpings, among hundreds of stumpings in the initial days, when I used to bowl outcutters. And I was very sharp, and these outcutters were very sharp. And the moment the batsman used to lift his leg, he used to stump him. So, I mean, amazing talent. And I always used to say that if Ramakant Pawar is there in the team, then half of the battle is won. Sir, I have got one message for you. Please listen this. हाय सतीश, रमा, एक साथ मैच खेलते थे, तब की इतनी यादें हैं जो बताने में तो दिन कम पड़ेंगे। इनमें से कुछ यादें ताज़ा कर रहा हूँ। ठाणे में नाइट टूर्नामेंट, सेमीफाइनल तक सभी बैट्समैन को मैच का पहला और तीसरा ओवर बॉलिंग करके तूने तकलीफ में डाला था। वही बॉल ढूंढने का सिलसिला फाइनल मैच में शुरू हो गया। सुबह 6 बजे फाइनल मैच शुरू हुआ था। सामने वाले टीम के ओपनर तेरी पहली ओवर लिटरली बैट से टच करना छोड़ो, बॉल बॉडी पर लेने के लिए नाच रहे थे। विकेट के पीछे मैं खड़ा यही सोच रहा था कि मैं और सतीश विकेट पर विदाउट बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में आपको मैन ऑफ द सीरीज बजाज स्कूटी मिली थी। प्राइज लेने के बाद आपने आकर कहा स्कूटी पर सबसे पहले रमा बैठेगा, तब बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ था। थैंक्स सतीश। अब तक मुंबई के सारी टीम ने सतीश शेट्टी की पहली और तीसरी ओवर का डर सा बैठ गया था। बड़े बड़े बैट्समैन ने इम्प्रोवाइज शॉट ढूंढने के प्रयास किए, लेकिन सतीश के सामने सब फेल हो चुके थे। मुंबई के टीम के कैप्टन ने अपने ओपनर बदल कर देखे। मैं नाम नहीं लूंगा, कितने का तो टेनिस क्रिकेट खत्म होते मैंने देखा है। सतीश ग्रुप और उनकी अंपायर टीम सतीश शेट्टी के फैन बन चुके थे। सबसे बढ़िया किस्सा जिससे तू और मैं कभी नहीं भूल सकते, भाईंदर में नाइट टूर्नामेंट, क्वार्टर फाइनल में मैचलेस, सेमीफाइनल में राहुल 11, इनको हराकर फाइनल मैच बोरोली पैकर के साथ। पहले बैटिंग करते हुए हमने 6 ओवर में 43 रन बनाए। सामने वाली टीम में ओपनर मंदार गरुड़े, जिसको 4 दिन पहले आरके ट्रॉफी टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन मिला था। इनिंग स्टार्ट, सतीश शेट्टी पहला ओवर, फर्स्ट बॉल डॉट, सेकंड बॉल डॉट, थर्ड बॉल डॉट, तीनों बॉल मेरे पास। चौथे बॉल के लिए सतीश ने स्टार्ट लिया और शॉर्ट मिड ऑफ से अजीत पुत्रन ने चिल्लाकर मैच रोक दिया और मंदार के पास आकर बोला, मंदार ये फाइनल मैच चालू हो गया है, इसमें ट्रायल बॉल नहीं होता, 3 बॉल हो गए। मंदार वेरी अपसेट।
फिर चौथा बॉल डॉट और पांचवा बॉल मंदार बोल्ड। ऐसे न जाने कितने मैच तूने जीता है। आखिरी में तेरा हमेशा की तरह बॉल डालने के बाद वाला डायलॉग, ट्याऊ हाबक घे। सतीश, रियली यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड. Hats off to you. Sir, this was Ramakant Power for you. Yeah. What will you say? No. I mean, we both played one of the best tennis cricket together, you know, and we used to complement each other very well. And I remember, I cultivated the habit of bowling in cutters as well as out cutters in the same action, you know, in the same action. So, and Rama was the only person who could read me the moment I used to take the start. So, बढ़िया, मतलब रमाकांत जैसा कीपर मिल ही नहीं सकता है. He is absolutely amazing. And he used to do flash stumping. बैट्समैन ने पैर उठाया and he stumped. It is that way. सर मेरे को ये जानना है, यू केम एज अ प्लेन बॉलर, एकदम प्लेन बॉलर, कहाँ से ये चेंज लेग कटर ऑफ कटर, कब से ये प्रैक्टिस चला और कब आपने ये इंट्रोड्यूस कर दिया? नहीं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस के टाइम में ही हुआ था. इट वाज ऑल ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन. जो हम लोग रोज का रोज प्रैक्टिस करते थे वहां से स्टार्ट हुआ. एंड उसके बाद जब हम लोग खेलते थे ना, तो उसमें सामने वाला प्लेयर सामने वाला बैट्समैन कैसा बैटिंग करता है, वो बेसिस पे हम लोग वी यूज्ड टू चेंज. तो कटर्स, मेरा जो एक्शन है, एक्शन के हिसाब से आउट कटर्स जो है वो नेचुरल है. इन कटर्स जो है दैट वाज समथिंग व्हिच आई कल्टिवेटेड, आई डेवलप्ड, यू नो. एंड इन कट, वो जब से मैंने वो दोनों स्टार्ट किया डालने के लिए, तब से आई मेड अ बिग डिफरेंस इन आवर टीम. सर, big fights, lot of players use big fight with which team? Most of the time it used to happen with Rahul 11, because Chandrakant Shinde and Ramesh Sharma both wanted to dominate the cricketing world, so they did not want to lose. So उसमें ऐसा था कि किसी को हारना ही नहीं है, दोनों को ही जीतना है. तो वो जीते, वो उस in that process there used to be fight and all. But then yes, I used to be the middleman everywhere and to stop those fights. Sir, Chandrakant Shinde, I have one message from you from Chandra. क्या बात है? सतीश शेट्टी बद्दल मला जर सांगायचं असेल ना, तर जेव्हा राहुल 11 पीक पिरियड मध्ये होती, त्यावेळेला सतीश नॉर्मल बॉलर होता. पण ज्या वेळेला तो लेग कट, जेव्हा शिकला ना, एवढा मोठा बॉलर झाला ना की मला वाटत नाही की त्याचं नाव ही पिढी आणि येणारी पिढी विसरेल. एवढी सुंदर गोलंदाजी करायचा की अक्षरशः मोठे दिग्गज यार, असं नाही की सगळे मोठे, जेवढे टेनिस बॉल क्रिकेटचे मोठे दिग्गज होते, जे वरच्या 4 लाईन मध्ये 1, 2, 3, 4, 5 मध्ये बॅटिंगला यायचे ना, अक्षरशः लोळून टाकायचे. एवढी सुंदर गोलंदाजी करायचा. आणखीन माणूस म्हटलं की एक नंबर, म्हणजे चांगला माणूस म्हणतात ना, तसं तो चांगला माणूस. दुसरा आणखीन एक पाठ तुला सांगतो त्याने बरीच मैदान अशी गाजवली आहेत ना बॉलिंगच्या जीवावर की स्मूथ ऍक्शन, क्लास. रिचर्ड हॅडली कसा बॉलिंग टाकायचा, अक्षरशः तसं एकदम सुंदर ऍक्शन आणि क्लास रे, म्हणजे तोडच नाही असा बॉलर, गोलंदाज. आणि त्याच्यात सुपर बॉलिंग त्याने आरकेला टाकली होती, मला आठवते चांगलं. आणि आम्हाला ना राहुलला खोलून टाकलं होतं. आणि मग ती मॅच 2 बॉल 5 आली, पतलाने तो 1 रन केला आणि बंटीने स्टेप आउट 6 मारला आणि ती जिंकलो. खरोखर तो जो त्याने टाकलेला स्पेल आहे ना टेनिस बॉल क्रिकेटच्या करिअर मधला, अगदी मिरॅकल स्पेल होता. सतीश खरोखर ग्रेट बॉलर. आजही मी सांगतो ना, आजही ती व्यक्ती बॉल घेऊन टाकायला लागली ना, तर 2-3 बॉल असे टाकेल ना, अनबिलिव्हेबल टाकेल, खरं सांगतो. आणि
मेन म्हणजे कसं आहे, तो जेवढे मोठे प्लेअर तेवढ्या मोठ्या प्लेअरला तेवढीच चांगली सुपर गोलंदाजी तो करायचा. खरोखर म्हणजे माझ्या बघण्यामध्ये, मी जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष क्रिकेट खेळलो ना, तर पहिली ओव्हर ना अनिल सारंग आमचा टाकायचा, इन आउट इन आउट इन आउट. त्याच्यानंतर जेव्हा ह्याने ही बॉलिंग शिकली ना, कट बॉलिंग, त्याच्यानंतर हा एकदम उच्च कोटीचा दर्जेदार बॉलर झाला. आणि जेवढं मी सांगेन ना कमीच आहे खरं तर. सतीश सारखा बॉलर पहिलीवर टाकणारा, अनिल सारंग सारखा पहिलीवर टाकणारा बॉलर, दोन्ही प्रकारचे कट, मी खरोखर अजूनपर्यंत मला तसं बॉलर दिसत नाही. त्या पद्धतीचे कट बॉलिंग बाहेर काढणं आणि आत आणणं अप्रतिम. आणि त्याला साथ मिळायची, इलेक्ट्रिक शॉट म्हणतात ना, किपिंग करायचा तो रामा. दिस वॉज चंद्र शिंदे. Means a lot. हर एक बार हसन मैच, पब्लिक क्राउड पूरे स्टेडियम में, इट वॉज प्रेसी राहुल और प्रेसी मैचलेस. क्या बोलोगे आप चंद्रा के बारे में सर? चंद्रा के बारे में क्या बोलना है, आई मीन आई वुड से कि जैसा मैंने पहले बोला था ना कि वो, उसको भी ऐसा हार बर्दाश्त नहीं होता था, रमेश शर्मा को भी हार बर्दाश्त नहीं होता था, और दोनों के पास बेस्ट टीम, बॉम्बे के बेस्ट टीम उनके साथ था. तो दोनों भी, आई मीन क्रिकेटिंग ब्रेन्स, अमेजिंग क्रिकेटिंग ब्रेन्स दोनों का. अभी क्रिकेटिंग ब्रेन्स में अगर रमेश शर्मा का बोलने जाऊं तो रमेश शर्मा एक बैट्समैन को देखता था तो ही हैज टू कम आउट विद सम सॉल्यूशन कि इसको कैसा निकालना है बस. एंड ही हैज टू कम एंड टेल मी कि सतीश तेरे को सिर्फ इतना ही करना है बस. एंड बोथ ऑफ अस, मैं क्या बोलूं अभी, आई मीन वो जो जैसा वो प्रेडिक्ट करता था वैसा आई यूज्ड टू बॉल एंड देन वी यूज्ड टू गेट विकेट्स, यू नो. पर सर रमेश शर्मा अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन. तिलकनगर ने ऐसा एक कैप्टन दिया, आप खेले, मैं खेला, पर आपके बॉलिंग में एवरी टाइम स्लिप लगाते ही थे वो. सर उसके पीछे रीजन? एक्चुअली क्या हुआ था, जब टेनिस क्रिकेट स्टार्ट हुआ, आई डोंट थिंक ये जो कल्चर था ही नहीं, टेनिस क्रिकेट में स्लिप लगाने का कल्चर था ही नहीं इनिशियली. तो जब मैं कटर स्टार्ट किया था, आई मीन आउट कटर्स जब डालने को स्टार्ट किया, तो या तो स्टंपिंग, आई मीन अगर बैट्समैन बीट हुआ तो रमा स्टंप करता था, अगर बैट्समैन का कट लगा तो वो स्लिप से निकल के जाता था. तो फिर देन व्हाट वी डिड, वी सेड कि अरे यार अपन बाहर का एक प्लेयर कम करते हैं, व्हेन वी विल स्टार्ट कीपिंग सतीश, वी विल स्टार्ट कीपिंग अ स्लिप. एंड देन वहां से शुरुआत हुआ. एंड देन शुरुआत सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, स्लिप्स रखने के बाद इतने सारे विकेट हमको स्लिप्स में मिले ना, कैचेस. आई मीन इट वाज ब्रिलियंट आइडिया ऑफ रमेश शर्मा. एट द सेम टाइम उस समय में मे बी आई वाज आल्सो इक्वली गुड इन बॉलिंग दोज आउट कटर्स. बिकॉज रमेश शर्मा सर का एक था, जब 14 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करते वक्त फर्स्ट नेम आपका होता था. वो तो है, वो आई एग्री दैट. सर फिर बैटिंग में लो स्कोर होता था. मीन सूरज भंडारी, प्रवीण नायर, आउटस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सुपर्ब स्टार्ट. उसके बाद नरेश सर बैटिंग में स्कोर कम होता था. फिर प्रेशर ऑन बॉलर. क्या आपके साथ बाकी के 3 बॉलर भी वही कॉन्फिडेंस से आपको सपोर्ट करते थे? एब्सोल्युटली. मैं वही बोल रहा था ना कि फर्स्ट एंड थर्ड ओवर, अगर फर्स्ट एंड थर्ड ओवर में हमने 3 या 4 विकेट ले लिया तो यानी हमने मैच जीत लिया. अगर वो नहीं हुआ तो देन वी हैड अजित पुत्रन बॉलिंग द 6th and 8th ओवर. हम कोई भी मैच में हमने, भले हमारा टीम 20 बनाए, 30 बनाए, 50 बनाए, 60 बनाए, हमने ऐसा कोई भी मैच में वी डिड नॉट गिव इट जस्ट लाइक दैट, यू नो. वी फॉट टिल द लास्ट बॉल ऑलवेज, बिकॉज ऐसा था कि हमारा थिंकिंग ऐसा था कि if we could not score, definitely they also could not score. So we should fight it out. So that is how it was, you know. Sir, and lot of commentators, umpires, when you used to bowl, commentator used to catch the mic. नहीं हमको ही करना है. Umpire used to love doing umpiring when you used to bowl. Yes, I remember सतीश कुरुप ने एक बार ऐसा बोला भी था कि तू जब भी बॉलिंग करता है, जो साइड से तू बॉलिंग करता है, मेरे को वो साइड से अंपायरिंग करने को अच्छा लगता है, बिकॉज
मेरे को तेरा बॉलिंग देखने को ही बहुत पसंद है. तो दैट इज, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सर, वन मैसेज फॉर यू सर. Satish Shetty as a cricketer is a legend in his own right. Nobody has come close to him till date. He used to read the batsman's mind and used to bowl accordingly. He has the ability to move the ball both the ways in one action. That was the reason he became #1 bowler of all times. He is a great human being and loved by one and all. May God bless him abundantly. सतीश ग्रुप सर. सर, आपके जनरेशन से अभी तक एम्पायरिंग करे, लेजेंड एम्पायर, क्या बोलोगे उनके बारे में? सतीश कुरुप, अपार्ट फ्रॉम अंपायर, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ. उस समय नहीं था, अब आज के तारीख में ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो एंड वो ऐसा एक अंपायर था जो किसी का कोई मतलब नो फेवर्स, नो पार्शियलिटी, एब्सोल्युटली नो पार्शियलिटी, एकदम कड़क अंपायर. कोई भी हो, तू अगर भाई है तो तू तेरा घर पे, मैं अंपायरिंग के लिए आया तो मैं अंपायरिंग ईमानदारी से करूंगा. सो एंड वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैचेस ऑल्सो, अगर समझो एक विकेट गया तो जब तक दूसरा बैट्समैन आता नहीं, वी यूज्ड टू टॉक, डिस्कस, ही यूज्ड टू अप्रिशिएट. इफ आई यूज्ड टू बॉल वेल, ही यूज्ड टू अप्रिशिएट. तो ये चलता रहता था. आई मीन, इट इज बिटवीन हिम एंड मी. दो ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, when it comes to cricket, he was very straight, very straight. I mean, I used to love him because उसमें उस समय क्या होता था, हर टीम के पास है ना कुछ फेकी बॉलर्स होते थे. I mean, the bowlers used to actually throw. So and those tournament, जिस टूर्नामेंट में वो थ्रो अलाउड नहीं है ना, उसमें we used to tell him कि बॉस, if there is a throw bowler, you have to object. और वो किसी का कोई सुनता नहीं था. He used to object and he used to just tell them to go out. And fortunately, our team, we had 4 genuine plain bowlers, plain action bowlers. So he always used to appreciate that कि हमारे टीम में 4 जो बॉलर है या 5 बॉलर जो है, they are, उनका एक्शन एकदम मतलब no doubt of anybody objecting their bowling action. Amazing, I would say amazing umpire. Sir, lot of cricket you played. Memorable tournament? RK Trophy, my all time favorite. I mean, उसके सामने मैं कोई भी मैच को नहीं रखेगा. I mean, RK Trophy would be one of the most memorable tournament of my life. जो अभी मेरे ख्याल से चंद्रा भी बोल के गया. चंद्रा के लिए भी वो बहुत बड़ा मेमोरेबल टूर्नामेंट था. आई रिमेम्बर हमारा, इट्स एन ओपन ग्राउंड. आरके ट्रॉफी जो होता है ना सुभाष नगर में, इट्स एन ओपन ग्राउंड. सो वो ओपन ग्राउंड में क्या होता है कि स्कोर्स इजीली होता है. हाँ, ठीक है. तो 8 ओवर्स में 48 is a good target. I mean, is a good score rather. It is not a good target for the I mean, even if score 48, the opposite opponent can score 48. तो उस समय क्या हो गया कि 40 फाइनल मैच में हमने 28 रन ही बनाया था, just 28. And I remember people saying that we almost, I mean, we said कि अरे ये तो अभी मैच हारने वाला है, तो हम लोग जाके we will go back. So and we will see first 3 overs and then we will go back because तुम लोग तो one side हारने वाले थे. But I don't know. I mean, that in that tournament it was magical basically, because in the first over itself I took 3 wickets, giving away just 1 run, and in the second over again gave some 3 runs and took 2 wickets. So 4 रन देके 5 विकेट लेके मैच को ऐसे मोड पे लाया ना कि राहुल लेवन लिटरली थॉट कि वो लोग हारने वाले थे. फॉर्चुनेटली लास्ट बॉल में एक 6 लगा और दे वन, बट उनका 9 विकेट्स, दे लॉस्ट 9 विकेट्स इन दैट मैच. अजीत पुत्रन ने भी एक उनका 5 विकेट, मेन 5 विकेट तो चला गया था. एक कल्याणी घोरपड़े वाज देयर, तो कल्याणी का विकेट वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस, एंड अजीत पुत्रन बॉल्ड अ ड्रीम बॉल एक्चुअली उसमें,
एक यॉर्कर डाल के उसका विकेट लिया था. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टूर्नामेंट. लिटरली आई मीन It was of 1997. It will be a dream spell for you, sir. it was in 1994, I guess, because I have the best bowlers trophy with me, Yeah. and it is written 1994. So I remember it is 1994, and I would consider this as one of the best match ever टेनिस बॉल में. एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि हमने उनको टफ फाइट दिया या द प्रेशर ऑफ आरके ट्रॉफी बहुत ही जबरदस्त प्रेशर रहता है व्हेन यू प्ले आरके ट्रॉफी. इट इज लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर टेनिस क्रिकेट, यू नो. अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू गो एंड प्ले स्टैंड इन द ग्राउंड. वो एक नया जो फर्स्ट टाइम जो खेलता रहेगा उसको लिटरली वो कांपता होगा उधर. इट इज वो लेवल का प्रेशर रहता है. एंड वो मैच में हमने इतना अच्छा सब लोग ने परफॉर्मेंस किया था. एंड आई थिंक वी शुड हैव, हमको जीतना चाहिए था. वी शुड हैव वन दैट मैच. बट नेक्स्ट ईयर आप लोग ने कमबैक किया. नेक्स्ट ईयर अगेन मेरे ख्याल से फाइनल में हारा शायद वापस. नहीं, फाइनल आपने जीता था सर. नहीं, वो दैट ईयर आई डिड नॉट प्ले फॉर आर्चीज. We lost. I had a separate team, and then we lost. So Archie's ने final मारा था. So, but yes, the match which I am referring to was one of the best ever match in tennis ball cricket. And I am sure Rahul Levan भी उस watch करेगा. They will also watch for it because it was a easy match for them when they started batting, and it became so difficult that they thought they lost the match. So when you got a prize, a bike in Thane, what was the feeling at that time? Well, that tournament again was one of the amazing tournament because I don't know, I must have bowled in that 8 over. I must have given some 6 runs and I've taken some 14-15 wickets. वो भी एक मेरे ख्याल से एक टेनिस बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड हो सकता है कि एक टूर्नामेंट में somebody is taking 14-15 wickets and giving away just 6 runs. वो मैच जैसा रमा ने अभी he spoke about that match. वो मैच में literally it was me and रमा and nobody else, you know. मैं बॉलिंग करता था, रमा पिक करता था, मैं बॉलिंग करता था, रमा स्टंप करता था एंड या आउट होता था. बस it was that way. And probably that was one of the that was the only tournament where a bowler got a man of the series award, you know. So I mean, I'm very happy about it when I talk about it. When you start your run up, कुछ आवाजें आते थे कमेंटेटिंग बॉक्स से, आपको सुनाना चाहता हूँ. दाहिने हाथ के ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए सतीश शेट्टी को देखना ये इंद्रलोक के देवता के लिए भी दुर्लभ दृश्य है. ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई हिरन छलांग लगाते हुए दौड़ते हुए जा रहा हो. क्या खूबसूरत नजारा है. सर हरीश पांड्या सर, he is a great commentator. I mean, one of the best commentator I have ever seen. He and Bala Subramaniam. And हाँ, they used to love me a lot. उनको बहुत पसंद था मेरा bowling action. When I was having a conversation today morning, वो मेरे को ये बोल रहे थे, उनकी बॉलिंग मैं बाला को भी साइड में रख के पहले माइक हाथ में ले लेता था. हाँ, उनको पता नहीं, वो लाइक जैसा अभी बोला ना, वो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई हिरन चल रहा है. he used to enjoy all those commentary. So probably इसीलिए वो खींच के लेता होगा शायद. He have some message for you. Again. सतीश मतलब बॉलिंग का एनसाइक्लोपीडिया. सतीश पहले आम गेंदबाजी करता था, लेकिन एक टूर्नामेंट उसके जीवन में आया. विक्रांत खुद मुझे बता रहे थे कि उसमें उसने जो गेंदबाजी की उससे वो इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्होंने बॉलिंग शुरू करने की कोशिश की. तो सतीश शेट्टी, विक्रांत खुद अगर बॉलर बना है तो ये आपको इसका पूरा श्रेय जाता है. और जहां तक सतीश शेट्टी का सवाल है, गेंद की दिशा, गेंद का टप्पा और उसकी गति, ये तीनों को गुलाम बनाकर गेंदबाजी करने वाला एक खुददार गेंदबाज. मतलब मेरी नजर में अगर देखा जाए तो सतीश शेट्टी, you are legend of the legends, and I give my best wishes to you for good health and good life. This was
हरीश पंड्या सर फॉर यू? हरीश पांड्या के साथ मेरा कनेक्शन 1987 ऑनवर्ड्स है, बिकॉज आई यूज टू गो एंड प्ले फॉर पयाडे. सो वो हमारे वो टूर्नामेंट्स के लिए सारे वो कमेंट्री करते रहता था. तो आई नो, आई मीन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम सिंस देन. सो उन्होंने मेरा जर्नी कंप्लीटली देखा हुआ है. तो शायद इसीलिए ही फील्स कि यस हैव कम द हार्ड वे, यू नो. सर मैनी बैट्समैन ने ये सोच लिया था क्या, जब सतीश सर आएंगे बॉलिंग को तो हम बैटिंग नहीं करेंगे, क्या स्ट्रोक खेलना है, सोच में पड़ जाते थे क्या वी हैव टू डिफेंस 6 बॉल. उन्होंने अपने कैप्टन से भी यही बात करने लगे क्या नहीं, अब हम एक पहले और थर्ड ओवर में ओपन नहीं करेंगे, हम आएंगे बाद के ओवर में, लेट सतीश शेट्टी बॉल और फर्स्ट एंड थर्ड ओवर, क्योंकि उनको डर था. सर क्या मैजिक था इसके पीछे? ये इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट देन यस, इन वन ऑफ द इंटरव्यू somebody said कि हमने चंद्रा को ये बताया था कि बॉलर लोग को पहले बेचते हैं, उसका 2 ओवर कैसे भी निकालते हैं, उसके बाद का 5 ओवर में जितना भी स्कोर बनेगा आगे के हमारे जो स्टार बैट्समैन लोग हैं तब उनको बेच के वो करते हैं. तो असलम सरगुरु, he was one of a great player. I mean, he was a great player. Definitely he was a great player. He in one of his interview had said that. तो अगर वो बोल रहा है तो हो सकता है. सर आरके का एक ऐसा मैच था जहाँ पे फर्स्ट ओवर में आपको 7 या 8 रन आए, रमेश शर्मा सर को कुछ ज्यादा रन आए. आफ्टर दैट महेश मकवान एंड यू इन 4th and 5th ओवर गेव अ कमबैक एंड मैच केम एट 6 बॉल 6 रन. तब एक गेंदबाज आया था संतोष साटिल. उसने वो मैच को कंप्लीटली घुमा दिया है. अब पता नहीं वो कहाँ से उसने वो पेस जनरेट किया था. उसके अंदर एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक भूत आ गया था. ऐसा बॉलिंग किया उसने, कमाल का बॉलिंग. आई मीन इट वाज लाइक he was bowling like Brett Lee basically. I would say that Brett Lee के स्पीड में वो डाला रहेगा वो बॉल. 6 का 6 बॉल. I mean he did not, I mean the batsman did not touch. I remember that match. Yes, so amazing bowler. So one message from संतोष साटिल सर. बद्दल बोलायचं, सतीश शेट्टी बद्दल बोलायला झालं तर मला एक दिवस कमी पडेल. सतीश शेट्टीला खूप मी जवळून बघितला. त्या वेळेपासून आम्ही एकत्र खेळतो जेव्हा आमच्या टीमचं नाव सुद्धा नव्हतं. रमेश शर्माने नवीन टीम सुरू केली होती. 6 जण आम्ही टिळक नगरचे आणि 5 जण आरसीएफच्या टीमचे, शैलू मिश्रा, अविनाश जाधव, दीपक केदारे, जूड आणि अजून 5वं मला आठवत नाही कोणतं. आणि आम्ही एकत्र खेळायला सुरुवात केली होती. सतीश शेट्टी त्याच्या अगोदरपासून खेळायचा, पण तेव्हा त्याचं एवढं नाव नव्हतं, कारण तेव्हा तो खूप फास्ट टाकायचा बॉलिंग, 6वी आणि 8वीवर टाकायचा. जेव्हा आमच्याबरोबर चालू केलं त्याने क्रिकेट खेळायला, तेव्हा तो लेग कटर टाकायला सुरुवात केली होती त्याने, आणि अप्रतिम टाकायचं. सतीश शेट्टी बरोबर म्हणजे मी खूप जवळ होतो. म्हणजे प्रत्येक टीम मध्ये जसे काही असे हे असतात ना, म्हणजे खास लोक, त्याच्यामध्ये मी, सतीश शेट्टी, सूरज भंडारी, सचिन सावंत, प्रवीण नायर, आम्ही आमचा एक गट, रमाकांत पवार, असे आम्ही एकत्र. आणि आमचं एकदम ते आतल्या आत असं किलबिल चालू असायचं, कारण आम्हाला जास्त काय, आम्ही एवढे काय म्हणजे जास्त ओव्हर स्मार्ट किंवा अति हुशार नव्हतो. आम्ही आमचं खेळायचं क्रिकेट आणि गपचूप घरी जायचं. त्या व्यतिरिक्त राईट लेफ्ट आम्ही कधी काय केलं नाही. चांगलं क्रिकेट खेळायचं आणि स्वतःचं रेप्युटेशन पण जपायचं आणि डिसेंट क्रिकेट खेळायचं, हे मी जर शिकलो असेल तर सतीश शेट्टीकडनं शिकलो. सतीश शेट्टीने कधीच कुठल्या कॉन्ट्रोवर्सी मध्ये कधी नव्हता तो, कधी कुठल्या भांडणात नसायचा. तो यायचा, क्रिकेट खेळायचा आणि निघून जायचा, बस. पैशासाठी कधी आयुष्यात क्रिकेट नाही खेळायचं, हे मला त्यांनी शिकवलं. तो कधीच पैशासाठी खेळला नाही. तो फक्त यायचा, मौजेसाठी खेळायचा. नंतर तर तो जेव्हा बॉलिंग खूप चांगली टाकायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी कधीच, मला वाटत नाही की त्याला बॉलिंग प्राइस मिळणार आहे म्हणून तो काही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करायचा. तो यायचा, आपलं बॉलिंग टाकायचा आणि निघून जायचा. आणि नंतर मग अनाउन्स बेस्ट बॉलर सतीश शेट्टी जे म्हणजे मला सतीश शेट्टीचे जे सगळ्यात चांगले मॅचचे परफॉर्मन्स तर मला खूप जवळून आठवतात. पण
त्यातले 2-3 परफॉर्मन्स म्हणजे एक तर आर के ट्रॉफीचा परफॉर्मन्स, माइंड ब्लोईंग बॉलिंग टाकली होती, कारण मी स्लीपला उभा होतो. मला ती 28 रनची मॅच अजूनही आठवते. 8 ओव्हरमध्ये राहुल 11ला 28 चेस करायचे होते. अक्षरशः सतीश शेट्टीने अर्ध्या टीमला झोपवून टाकला होता. माइंड ब्लोईंग बॉलिंग. परत गावदेवी मैदान ठाणा, जेव्हा त्याला मॅन ऑफ द सिरीज सनी मिळाली होती. त्याच्यानंतर असे कितीतरी किस्से आहेत सतीश शेट्टी बद्दल. सतीश शेट्टीचं सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे तो अतिशय डिसिप्लिन क्रिकेटर आहे. अतिशय डिसिप्लिन आणि एकदम शिस्तबद्ध खेळाडू आहे. त्यांनी कधीच, मला वाटत नाही आयुष्यात कधी कोणा कोणतीही फालतुगिरी केली असेल. आणि सतीश शेट्टी तसं बघायला गेलं तर माझ्यापेक्षा खूप सिनियर होता, पण आम्ही त्याला खूप असं हे करायचो, फॉलो करायचो. मी म्हणा किंवा सचिन सावंत म्हणा, प्रवीण नायर म्हणा, सूरज भंडारी म्हणा, आम्ही जे एकाच वयोगटातले सगळी होतो. आणि सतीश शेट्टी आमच्यापेक्षा जवळ एक 8-10 वर्षांनी मोठा होता. तर सतीश शेट्टीला आम्ही फॉलो करायचो. असे आमच्याकडे भरपूर प्लेअर होते. भरपूर प्लेअरकडनं काही ना काहीतरी शिकण्यासारखं होतं. रमेश शर्माकडनं ॲग्रेशन, किलिंग इन्स्टिंग रमेश शर्माकडनं शिकण्यासारखं होतं. म्हणजे कुठली पण मॅच, म्हणजे ती एकदम इम्पॉसिबल मॅच आहे तरी रमेश शर्मा बोलायचा नाही ये मॅच जीतने का ही मॅच. तशीच गोष्ट नरेश सावंतकडनं, की कुठल्याही ऍटमॉस्फिअर मध्ये, कुठल्याही म्हणजे फॉर्मॅटमध्ये, रब्बर बॉल, हलका बॉल, हेवी बॉल, डे मॅच, नाईट मॅच मध्ये माइंड ब्लोईंग बॅटिंग करायचा. म्हणजे तो कधी एक्सप्लोड सांगू नाही शकत. तसं सतीश शेट्टीचं असं होतं की सतीश शेट्टी एवढा ब्रिलियंट बॉलिंग टाकायचा आणि एवढ्या चांगल्या पद्धतीने स्मूथ ऍक्शन होती. कधीच त्या, म्हणजे आता मी कोणाचं नाव नाही घेणार, की बॉम्बेमध्ये भरपूर बॉलर झालेत, गोलंदाज झाले, फेमस गोलंदाज झाले, पण त्यांच्यावरती काही ना काहीतरी एक स्टॅम्प होता की ये करता, ये करता. सतीश शेट्टीवरती कधीच कुठला हे नव्हतं की सतीश शेट्टी चक करतो किंवा सतीश शेट्टीची ऍक्शन मध्ये किंवा इश्यू आहे काय. सतीश शेट्टीचे अनेक परफॉर्मन्स आहे, पण सगळ्यात बेस्ट मला आठवतो परफॉर्मन्स तो डर्बी टॉकीज मध्ये सिमेंट विकेट वरती सतीश शेट्टी बॉलिंग टाकत होता. समोर बहुतेक राहुल 11 होती बहुतेक, आणि त्यामध्ये संतनू गायचूर खेळत होता. आणि संतनू गायचूरला तेव्हा 5व्या नंबरला बॅटिंगला पाठवला होता. सतीश शेट्टीची शेवटचे 2 बॉल मला वाटतं बाकी होते 3ऱ्या ओव्हरचे, आणि संतूला त्यांनी बॅटिंगला पाठवला होता. आणि संतूनी तो बॉल वेल लेफ्ट केला होता आणि सतीश शेट्टीने मोठा ऑफ ब्रेक टाकून त्याला बोल्ड खेळला होता. आणि तेव्हा मी कीपिंग करत होतो. मी स्लीपला उभा होतो. मला वाटतं रमा कीपिंग करत होता त्या मॅचला. असे बरेच किस्से आहेत. खूप चांगले दिवस आम्ही एकत्र घालवले आणि खूप चांगल्या मनाचा, मोठ्या मनाचा असा खेळाडू आहे. आणि सतीश शेट्टीचं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये नेहमीच राहील. मोठमोठ्या दिग्गज खेळाडू मध्ये सतीश शेट्टीचं नाव नेहमीच राहील, कारण सतीश शेट्टीने तसं ते नाव जपलंय. थँक्यू. दिस वॉज संतोष साटवीकर, बिकॉज सचिन सावंत, सूरज भंडारी, प्रवीण नायर, संतोष साटवीकर, जब ये आपके साथ मैच को आते थे, आप इनको संभाल के लेते थे? हाँ, संभाल के नहीं लेते थे, बट इट वाज लाइक क्या, मैं उनसे पहले स्टार्ट किया था, तो वो जब नए नए आए थे तो किसी और के पास जाते नहीं थे वो लोग, तो मेरे पास ज्यादा रहते थे, तो कंफर्ट फीलिंग बहुत ज्यादा था. तो यस, एग्रीड. एंड उस समय आई मीन वो लोग जब आए तब आई वाज एट माय पीक. तो मैं जब अच्छा बॉलिंग कर रहा था तो दे यूज्ड टू कम विद मी एवरीवेयर. उनको मैं संभाल के लेता था, दैट वाज फॉर श्योर, बिकॉज नए नए थे. आई डिडंट वांट कि दे शुड फील लेफ्ट आउट, तो उनको साथ में मैं लेके खेलता था जरूर. दे वर माय फेवरेट्स आल्सो एक्चुअली. So after 5 minutes, we'll take a break of 10 minutes, and then when again we'll come live, sir. Okay. One more question. मंदार गरुड़े, रमाकांत पवार टोल्ड, क्या भाईंदर के मैदान में वो मैच मंदार गरुड़े का? I can't say anything about that, please. So what was that time? Means आपके दिमाग में क्या नहीं, चल रहा था? उसमें कैसा था, उस समय मंदार गरुड़े had won the batting prize in RK Trophy. And और ऐसा था कि हमने बहुत कम स्कोर किया था and we wanted to and it was a final. तो ऐसा था कि वो इम्पैक्ट एक था कि हाँ मंदार गरुड़े अभी आया है तो वी हैव टू उसको उसका विकेट लेना जरूरी था. तो आई मीन
इट वाज आई मीन गुड मैजिकल बॉलिंग जो बोल सकते हैं, उसमें से एक ओवर वो भी हो सकते हैं, वो भी But था। मंदार गरुड़े मंदार सर, गरुड़े, यस, ही इज अ गुड, वेरी गुड प्लेयर। Very good और या, और उसमें आप क्या लोग हुआ था के- कि इट वाज अ नाइट टूर्नामेंट, तो आउट कटर्स और इन कटर्स उसमें जो क्या हो रहा था कि वो सोचता था कि वो बाहर आउट कटर है, तो वो बॉल अंदर आ रहा था, और वो अंदर अंदर के लिए खेलता था, तो वो बॉल बाहर जा रहा था, तो वैसा हुआ था बस। सब बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने उसके बाद भी की और अभी भी कर रहा है मंदार अभी गरुड़े। भी खेल रहे हैं वो, He is- यस यस। There is मंदार गरुड़े फॉर यू। क्या बात कर रहे हैं? Hello Satish, how are you? Hope you and your family is fine. सतीश बद्दल बोलायचं झालं तर तो त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीमधील मुंबई मधला वन ऑफ द ग्रेट बॉलर होता, जो कुठल्याही फलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीवर सहज हाताळायचा. त्याची गोलंदाजी नुसती पाहत राहण्यासारखी असायची. जितक्या सुंदरपणे तो आउटकटर टाकायचा, तितक्या सफाईने इनकटर टाकायचा. त्याच्या गोलंदाजीची जमेची बाजू म्हणजे त्याची लेंथ आणि ॲक्युरेसी. म्हणून तर त्याच्या टीमचा हुशार कॅप्टन रोमेश शर्मा बिनधास्तपणे सतीशच्या बॉलिंगवर 2 ते 3 सीम लावायचा. माझ्या दृष्टीने त्यावेळेस मुंबईतील पहिल्या 3 गोलंदाजांमध्ये सतीशची गणना होऊ शकते. सतीश ऍज अ क्रिकेटर म्हणून तर अव्वल होताच, पण तितकाच तो ऍज अ जेंटलमॅन आणि एक चांगल्या स्वभावाची व्यक्ती आहे. अशा या माझ्या मित्राला त्याच्या उर्वरित आयुष्यासाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थैंक यू वेरी मच सर, विल टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड विल कम अच्छा अगेन लगा, लाइव. अच्छा लगा, ओके श्योर. तर आपण घेऊया 5 मिनिटाची विश्रांती, परत लाईव्ह सतीश शेट्टी बरोबर. पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण एक छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत भेटतोय. मी थोड्याच वेळात सतीश सरांना कनेक्ट करतोय लाईनवर. थोडस डिस्टर्बन्स येतोय. सतीश सर येतील लाईनीवर, मी कनेक्ट करतोय त्यांना. So welcome back. हाय. सर, अब हम चलेंगे ऐसी टूर्नामेंट जहाँ पे आपको कभी डिफिकल्टीज हुई होगी बैट्समैन लोग को देख के, क्या मैं इसको क्या बॉलिंग डालूं या क्या लाइन एंड लेंथ मेंटेन करूं. सर, कभी हुआ एक बैट्समैन को देख के कि इज अ वेरी टफेस्ट बैट्समैन, बहुत फॉर्म में या कुछ? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पीक पीरियड में तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं. मतलब ऐसा था कि हर प्लेयर के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी था, या वी यूज्ड टू डिस्कस कि ये प्लेयर का वीक पॉइंट क्या है और इसको कैसा बॉलिंग करना है. तो आई डोंट रिमेम्बर ऐसा कि कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसके लिए मतलब मुझे बहुत तकलीफ होता था. बस यस, देयर वर प्लेयर्स हु यूज्ड टू प्ले वेल. वो ऐसे ऐसे कुछ लोग थे कि हाँ, ये लोग अच्छा खेलते थे, वो लोग अपना विकेट पकड़ के खेलते थे, एक रन लिया और फिर नॉन स्ट्राइकर में गए. वैसे प्लेयर्स तो काफी थे. सर, लेदर बट क्रिकेट ऐसा कोई प्लेयर मुझे ऐसा याद नहीं है कि उसको देख के ऐसा लगता था कि अरे यार ये नहीं, इसको हम लोग इसको, आई मीन ही वाज डिफिकल्ट बैट्समैन और समथिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ. सर, टेनिस के साथ साथ लेदर क्रिकेट, यू स्टार्टेड प्लेइंग लेदर क्रिकेट.
प्रेसी Yes. अंकल ने एक एंट्री किया था कुर्ला बापत टूर्नामेंट में. एक्चुअली कुर्ला बापट कुर्ला बापट मैंने एक साल मैंने खेला था वो. इट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर अस कि वी वांटेड टू प्रूव कि टेनिस क्रिकेट प्लेयर्स आर बेटर देन द लेदर बॉल हार्डकोर लेदर बॉल क्रिकेटर्स यू नो. और कुर्ला बापट का एक साल में हम लोग फाइनल में आए थे एंड वी वन दैट फाइनल. दैट वाज अगेंस्ट MIG वाज ए डिवीजन का टॉप टीम. आई मीन लेदर बॉल में सब रणजी प्लेयर्स खेलते थे और मुझे याद है बट उसमें मेरा कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं था. आई रिमेम्बर उसमें अविनाश यादव हैड प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम यू नो. ब्यूटिफुल. आई मीन ही स्कोर्ड समवेयर 75 to 80 runs and we won that match. वो मैच का एक खासियत ये है कि वी हैड लॉस्ट अराउंड 8 विकेट्स और एक कुछ 4-5 रन बचा था और सचिन सावंत को बैटिंग के लिए भेजा था. तो मैंने सचिन सावंत को एकदम क्लियरली मतलब गाली देके ही स्ट्रेट अवे बोला था कि अगर तू आउट होके आया, बिकॉज उसके बाद मेरा बैटिंग था और वो मैच हमको जीतना ही था. तू आउट होके आने का नहीं है, तेरे को जीता के आने का करके. सो आई रिमेम्बर दैट मैच बिकॉज ऑफ दैट एंड वी वन दैट मैच एंड उसमें क्या हुआ था कि वो दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड बीइंग अ लेदर बॉल जायंट्स. उन्होंने देखा कि हमारा जो टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयर्स का एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स क्रिकेट वाज अमेजिंग. तो उनको ऐसा लगा कि यार इनके साथ खेलना है तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. So there was one player in your team, outstanding batsman, fielder, and used to bowl sometimes also. One message he has sent for you. जेव्हा मी क्रिकेट खेळत होतो तर्फे त्या टीम मध्ये असे बरेच खेळाडू होते ते खूप नावाजलेले होते. त्यामधून असं एक नाव आहे ते सतीश शेट्टी. त्याच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे त्याच्यासारखा बॉलर मी आत्ताच्या क्रिकेटमध्ये पण पाहिलं नाही. म्हणजे आम्ही जेव्हा क्रिकेट खेळत होतो तेव्हा त्याची बॉलिंग अशी होती, त्याचा रिदम, त्याची ऍक्शन एवढी स्मूथ होती की तो म्हणजे कुठल्याही प्लेअरला त्याचा एकाच ऍक्शन मध्ये येणारे दोन्ही बॉल कळतच नव्हते, अशी त्याची गोलंदाजी होती. आणि मी त्याला खूप जवळ पाहिलंय. म्हणजे तो जेव्हा आमच्या टीमचे समजा तेव्हा 6 आणि 8 ओव्हरच्या मॅचेस असायच्या, त्याच्यामध्ये आम्ही समजा एखाद्या वेळेस 20-25 रन्स मध्ये पण ऑल आउट झालो. आमच्यामध्ये त्या बॉलरमध्ये एवढी क्षमता होती की तो आम्हाला त्याच्या 2 ओव्हरमध्ये कमी रन देऊन जास्तीत जास्त विकेट तो काढून द्यायचा. असा सतीश शेट्टी नावाचा वादळ आमच्या टीम मध्ये होता. त्या वादळामुळे आम्ही बरेच टुर्नामेंट अशा एखादी जिंकलो. आणि मी स्वतःला खूप लकी समजतो की मी रेसिनो खेळत होतो. सतीश शेट्टी बद्दल सांगण्यासारखं बरंच आहे, पण मी ते तुम्हाला भेटल्यावर सांगेन. Sir, Hitesh Kamble. Hitesh Kamble, yes. We played a lot of cricket together. See, yes, हमारा जो टीम था ना एक 14-15 लोगों का टीम था. यही 14-15 लोग हमने मतलब पूरा 5-6 साल साथ में खेला. ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम कोई मैच हार गए तो बाहर से कोई नया प्लेयर ले ले, या वो कभी हमने किया नहीं. We played with the same team. We had the 15 member team. We played the same 15. वो 15 में से 11 सिलेक्ट करते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, तो वो 11 लोग हमारा फिक्स. यही 15 लोग में से हमारा 11, तो उसमें से एक हितेश कांबले. We played lot of matches together. Sir, I have some questions. It's a rapid fire round. Very quick answer you have to give. Best captain you played under? Ramesh Sharma, undoubtedly. Best bowling partner? Ajit Putran. Toughest batsman to bowl? I won't say any. I mean, I have not seen. I think if Avinash Jadhav had played against me, probably he would have been toughest. So then, favorite tournament? One and only RK Trophy. Lot of fans you have, but one craziest fan? I think Sachin Sawant. Favorite ground? And other than Sachin Sawant, I think even Santosh Atilkar. Though he's a good friend,
I think he is also a good fan. I mean, a great fan. Favorite ground? RK. RK and Barkha. Barkha was the wicket, brilliant wicket बनाते थे वो लोग. So I think Barkha as well as RK Trophy. The best match in your cricketing career? Undoubtedly. RK Trophy final. Best player in your team? I think I would say Avinash Jadhav. Funniest player in your team? Santosh Satilkar, hands down. Favorite opponent team? I used to love playing against Matchless, Rahul 11, Tilak Chowk. But yes, Rahul 11 always. If you get a chance right now to form a team and play, you will come back? That is my dream, maybe after my retirement. Okay. We'll move on to Agar. There are a lot of fans of yours. Few fans have asked you one questions. I will go with it. It is none other than Rohit Hire, one of the greatest bowler from Tilak Nagar. He asked, message to the young cricketers, how to balance cricket and career. See, if you want to make cricket as a career, you should go all out and play under a very good coach and practice till you succeed. If you want to make cricket as a career. If you want to play cricket just for passion, then you should always have a good job in hand. That is my message to them. So one more fan, it's Nikhil Kotian is asking, sir, favorite bowler and batsman during your time and currently? Currently, मैं actually follow नहीं करता हूँ. Frankly speaking, I don't follow current cricket. During my time, I would rate Ajit Putran as one of the, because he was a good partner for me. You know? I mean, first 3 overs I used to bowl. Next last 3 overs he used to bowl. So it was like we used to complement each other. If I did not bowl well, I was damn sure कि वो अच्छा डालेगा ही डालेगा. अगर so for me it is Ajit Putran and batsman Avinash Jadhav once again, hands down. It's Omkar Chaudhary asking him that if you want to gather a team of the colony Tilak Nagar and make a good team, so he's requesting you, please come forward and do this, sir. Yes, that is what I said. Maybe after my retirement, that would be one of the job which I would want to do. Because क्या है ना, in our colony, Tilak Nagar में I have seen lot of good players, but they are not playing together. They need one Ramesh Sharma, जो उनको सबको साथ में लेके आए. There are, I mean, extraordinary players there. Individually, if you see, they are good. But पता नहीं, maybe it is because of their ego or something, which I feel कि वो सब side में छोड़ना चाहिए ego. They should come together, form one good team the way we had formed, and bring back the glory that we had got in our days. Then it's Rohit Kakre asking you, which is magical spell of your life? Magical spell was that first over, 1 run, 3 wickets, the final of RK Trophy. It is not because कि मैंने अच्छा डालने का से भी ज्यादा क्या था कि वो टूर्नामेंट का जो प्रेशर, in that pressure, bowling such a spell was very difficult. So for me, that will always be my all-time best over. So this was your fans' question, but I will go through it. There was a match at Gandhi Maidan. That against, I think so, it was against Matchless. उस टाइम पे संतोष साटिल अपना संतनु गायचोर, उमेश मांजरेकर, yes. रमेश शर्मा सर ने स्लिप लगा दिया था एंड बैट्समैन को लगा एज यूजुअल लेग कटर आएगा, बट इट वाज अ ऑफ कटर और स्लिप में कैच. सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? एक्चुअली क्या था कि he actually wanted to leave the ball. वो
जैसे उसने देखा कि मैं रमेश शर्मा ने 2 स्लिप लगाया था, 1 स्लिप नहीं लगाया था, 2 स्लिप लगाया था। 2 स्लिप लाए। हाँ 2 स्लिप लगाया था, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड था तो वहां पे फील्डिंग बाहर फील्डर लगाने का कोई मतलब नहीं था, तो व्हाट ही डिड वाज 2 स्लिप लगाया। एंड साइकोलॉजिकली बैट्समैन को ऐसा लगा कि अब ये आउट कटर डालेगा करके, तो आउट कटर डालेगा बोला था, और रमेश ने आके मेरे को यही बोला था कि तू उसको आउट कटर मत डालना, इन ऑफ ब्रेक ही डालना। एंड जैसा वो आउट कटर बोल के खेलने गया और वो बॉल छोड़ दिया, वो बॉल बाहर से अंदर आया, बैट को लग के वो स्लिप में कैच गया। So many cricket you played, means रबर बॉल हुआ, टेनिस बॉल हुआ, सर रबर बॉल की मेमोरीज। रबर बॉल was something which I never used to like, because वो ऐसा था कि वो इनिशियल स्टेजेस में जब मैं आई यूज्ड टू बॉल वेरी फास्ट, मतलब मैं लेदर बॉल बंद करने के बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, तो वो आई यूज्ड टू बॉल लाइक हाउ आई यूज्ड टू बॉल फॉर इन लेदर, तो फास्ट बॉलिंग करता था उस समय। मुझे वो रबर बॉल अच्छा लगता था कि आया फास्ट बॉल। आफ्टर I started bowling cutters and all, I never used to like actually bowling rubber ball. But yes, there are tournaments. पार्ले तिलक में हम लोग ने बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट्स खेले हैं जहाँ पे वो रबर बॉल का हार्डकोर रबर बॉल टूर्नामेंट्स होता था बारिश में। अच्छा, I mean I used to bowl very well there also. ऐसा नहीं कि खराब डालता था, बट ठीक है। बट ऐसा मेमोरी बोल के मुझे याद नहीं है कोई भी ऐसा टूर्नामेंट। सब जब हम ट्रैवल करते हैं कैसा होता है, चेंबूर के बाहर वेस्टर्न सबर्ब्स हुए, पनवेल साइड, थाना साइड, व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल, या मैच के टाइम के आगे पीछे कभी भी ब्रेक होता था, तो फनीएस्ट क्रिकेटर जैसे आपने संतोष साटिलकर का नाम लिया, सर क्या हंसी मजाक होता था। संतोष साटिलकर और अजित पुत्रन और हम लोग बाकी ये जो 3 चट्टर पट्टर है वो सिर्फ दे यूज्ड टू ओनली बी पार्ट ऑफ द लाफिंग गैंग। They used to crack so many jokes. I mean, if you call Santosh Satilkar and talk to him, he can entertain you for at least 5 hours without any problem. He is amazing guy यार, मजा आता है। टाइम पास कैसा होता है समझ में नहीं आता। संतोष साटिलकर और अजित पुत्रन टुगेदर, they used to be very funny. सब कुछ ऐसा एक मोमेंट अभी ऐसा मोमेंट एक हम लोग यहाँ पे गए थे, किधर गए थे यार, एक टूर्नामेंट खेलने के लिए हम लोग बाहर गए थे। आई थिंक बियॉन्ड पनवेल वी हैड गॉन। तो आते समय अलीबाग गए थे तो वो मैच खत्म होने के बाद हम वापस आ रहे थे, तो लेट हो गया तो कुछ आई डोंट नो, कुछ गाड़ी में हम जाते समय कुछ चाहिए था, तो संतोष साटिलकर नीचे उतर के किसी से कुछ पूछा और उसने वो डायरेक्शन, आई थिंक वी लॉस्ट द डायरेक्शन, एंड वो कुछ डायरेक्शन पूछा, तो उस समय वो जीपीएस वगैरह नहीं था, तो कुछ डायरेक्शन पूछा तो उसने डायरेक्शन बता दिया। तो अंदर बैठने से पहले वो उसको थैंक्स करके एक मतलब थैंक्स, एंड देन वी स्टार्टेड टीजिंग हिम कि अरे यार ये क्या, वो तो तूने उसे बताया उसको सीधा जाना था, तो इसमें थैंक्स बोलने जैसे क्या था। तो देन वी यूज्ड टू टीज हिम एवरी टाइम ऐसा कि थैंक्स, ऐसा बहुत सारे किस्से हैं ऐसा। आई मीन आई कैन नॉट रिकलेक्ट ऐसा, बट हम ये दोनों जोड़ी वेर वेरी फनी। What about Naresh Sawan? Excellent batsman. When मैं he used to बोलूं, bat, he was one batsman, like what I said ना, कि पहले ओवर में 6 नहीं मार सकता था। ऑलमोस्ट इफ यू से कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होगा ना, नरेश सावंत ने फर्स्ट ओवर में 6 मारा है। तो ऐसा नहीं था कि फर वाला बॉल था तो बॉल जाता नहीं था, उसने रिवर्स भी 6 मारा हुआ है, रिवर्स 6 भी मारा हुआ है। ग्रेट प्लेयर। सर मास्टरमाइंड कैप्टन रमेश शर्मा, बोलो सर ऐसा कौन सा मैच है, ऐसा कौन सा मैच मास्टरमाइंड नहीं है, ही इज आल्सो अ स्ट्रेटेजिस्ट। आई मीन बहुत सारे मैचेस है, अभी आई कैन नॉट से कि कौन सा एग्जैक्टली ऐसा पर्टिकुलर, कांट पिन पॉइंट अ सिंगल मैच ऐसा, बट आई रिमेम्बर वो
मैच में इतना इन्वॉल्व रहता था, हर एक बॉल में इतना इन्वॉल्व रहता था. एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू कम विद समथिंग और द अदर. वो बोलता था कि सतीश इसको अपन वो शॉर्ट मिड ऑफ को निकाल और उसको स्लिप में ला. एंड देन वो बोलता था कि वो उसको देखता है, वो जब शॉर्ट मिड ऑफ पे कोई प्लेयर नहीं है तो ही बैट्समैन का टेंडेंसी रहता है कि ही विल गो एंड हिट इन कवर्स. और बोलता था कि वो उसको मारने को दे एंड देन यू बॉल ऑफ ब्रेक so that there is a gap between bat and pad and then you can get a wicket there, bold मिलेगा. ऐसा सब strategies we used to. तीन स्लिप लगाया हुआ, मतलब टेनिस क्रिकेट में आई हैव नेवर हर्ड आल्सो. और साइकोलॉजी पे खेलता था. मास्टरमाइंड, बेस्ट कैप्टन एवर एंड स्लेजिंग किलर इंस्टिंक्ट. उसको तो मतलब एक तरफ से आई वुड से कि मार रडिया, उसको हार बर्दाश्त नहीं होता. उसको रडिया इन द सेंस वैसा रडिया ने, मतलब उसको हार बर्दाश्त नहीं होता, तो कैसा भी करके उसको जीतना है. अमेजिंग कैप्टन. आई मीन सब लोग बोलते हैं कि चंद्रा शिंदे बहुत बड़ा कैप्टन है. यस, चंद्रा शिंदे के पास बहुत ही अच्छा टीम था, बहुत ही अच्छा, यानी वन ऑफ द बेस्ट टीम ही हैड. वो फॉर हिम इट वाज ऑलवेज इजी. हमारे यहाँ पे वो रमेश शर्मा ने कॉलोनी के अंदर का ही टीम बना के उनको डेवलप करना was, I mean, I would actually call him as the mastermind. सर रमेश शर्मा सर ने तो स्लेजिंग भी स्टार्ट किया था. जब स्लेजिंग करते थे प्लेयर्स के साथ गेम चेंज होता था बहुत. रमेश शर्मा स्लेजिंग करता था, अजित पुत्रन करता था, अविनाश जाधव करता था. बट देन स्लेजिंग यानी इट वाज नॉट कि हाँ दुश्मनी में स्लेजिंग करता था, ऐसा नहीं. दे हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेजिंग. अजित पुत्रन यूज्ड टू से कि कोई भी बैट्समैन आया तो बोलेगा अरे तू क्यों आया, सतीश शेट्टी बॉलिंग कर रहा है तू. एंड देन वो प्रेशर उधर से स्टार्ट बिल्ड ऑफ स्लेजिंग दे यूज्ड टू डू. एंड इट यूज्ड टू वर्क फॉर अस. सर व्हाट विल से अबाउट द फिटनेस. क्रिकेट खेलना है सब है, फिटनेस कितना जरूरी होता है. हमारे टीम में ऐसा था कि देयर वर सम फील्डर्स हु आर नॉट एज गुड एज, आई मीन 7-8 अच्छे फील्डर्स हैं, 3-4 बेकार फील्डर्स हैं. फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इफ यू हैव गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड फिट फील्डर्स, फिट प्लेयर्स, यू आर बाउंड टू विन मैचेस. हमारे पास 3-4 ऐसे फील्डर थे. प्रवीण नायर, मतलब वो तो ही वाज अ फ्लाइंग नायर बोल सकता है. वो तो हवे में रहता था. कैचेस सब उसने हवे में कितने सारे कैचेस पकड़े. सचिन सावंत, कितने सारे फील्डिंग प्राइजेस उसने जीता हुआ है. सूरज भंडारी, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर. अविनाश जाधव, सुपर फील्डर. पॉइंट में अविनाश जाधव ने इतने सारे कैचेस लिए हुए हैं. रमाकांत पवार, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर. I mean, we had some beautiful, excellent fielders in our team, you know. Yes, बहुत fitness was very important. आपके टाइम से एक प्लेयर फिटनेस करते करते हमारे जनरेशन हमारे टीम में भी अभी खेल रहा है. Here's some message for you. Hi guys, this is Rabbi Katuch here. First of all, congratulations to Sachin Sawant and whole DSPL team for starting this new initiative that is Not Out with Legends, which of course give an opportunity to know more about cricket legends, their experiences, their stories, and which of course motivate youngsters who wish to make career in cricket. Lot many things to learn about. And secondly, if you talk about Satish Shetty, one thing which has come to my mind is, boss, he is a complete man. A man to rely on whenever he is been asked to bowl, to get maximum number of wickets. Because उस वक्त bowling first over and third over difficult conditions में with fur वाला ball, MRI ball हुआ करता था. It was a very difficult task, and especially in those conditions also getting 3-4 wickets in 2 overs, it was a very brilliant job done by Satish. And I have not seen even till date even any bowler in Mumbai cricket who has even come closer to Satish. The way he was bowling, because I also follow Mumbai cricket a lot more, but I have not seen a bowler like him. I know जब भी सतीश बॉलिंग के लिए तैयार होते थे तो हरीश पांड्या सर का एक ही आवाज आती थी कमेंट्री बॉक्स से कि जब मैं सतीश को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी हिरन को जंगल में छोड़ दिया गया है.
और उस हिरन जो है वो अपनी हवाओं से बातें कर रहा है और उसको रोक लगाना बहुत मुश्किल है. सेम वे सतीश की भी गेंदबाजी में जो निखार था, तो मैंने आई हैव नॉट सीन एनी बैट्समैन हु हैज डोमिनेटेड व्हेन इट कम्स टू डोमिनेटिंग सतीश व्हेन ही वाज बॉलिंग. सो कोई भी उन पर लगाम नहीं लगा पाया. और जो सतीश, आपको याद होगा कि जब भी हम मैच जीता करते थे तो सारी पब्लिक को पता लग जाता था पूरी कॉलोनी में, बिकॉज आप अपने क्लोजली टीम में जो कि सूरज भंडारी, प्रवीण नायर, सचिन सावंत के साथ में हमेशा रिक्शा में आते थे और आपके हाथ में वनीला कप आइसक्रीम हुआ करता था और आप खाते हुए आते थे. तो सारी कॉलोनी को पता लग जाता था कि बहुत आज लगता है कि टूर्नामेंट जीत के आए हैं. सो दैट वाज द ट्रेडमार्क फॉर होल Tilak Nagar. And one more thing, that was Satish Shetty is a great human being, thorough gentleman, and lot many things to learn from him as a youngster. And people, they come and he always give them advice whenever they require his advice. And we Tilak Nagar Vasi are really blessed to have a legend like Satish in our colony. And we really enjoyed your bowling during your time, and we bless you do well in your future life as well. Thank you, Satish, for all the entertainment you have provided so far in Tilak Nagar and in So you can say he's a real fitness example for today's generation. Exactly, I would say yes. Because आज भी अगर वो if he is playing even today, that itself shows कि वो अभी almost maybe more than 20 years he must be playing. I mean, yes, when we almost we were fading out, that was the time when he came in. But हमारे साथ उसने भी काफी मैचेस खेला हुआ है. तो उस समय से मतलब he must have definitely played more than 25 years. Around 25 years तो पक्का खेला होगा. And I keep watching him playing even now. And ऐसा नहीं है कि वो खराब खेलता है या just for the sake of playing वो खेलता है. जिद, आज भी वो वही जिद से खेलता है. एंड आई मतलब जीतना है तो जीतना है बस. तो wherever he is playing, even today he plays full 100%. Great guy. Everyone used to call you with one name. ये नाम आपको क्रिकेट ने दिया, बावा. ये कैसे हुआ? नहीं, एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री. मुझे भी पता नहीं ये नाम कहाँ से आया है करके. ये मेरा एक फ्रेंड है सुधीर पेटकर करके. हम लोग दोनों जब भी ऐसा नॉर्मल टॉक्स करते तो हाँ बॉ क्या कैसा है, तो वो बॉ दिस वर्ड एक्चुअली वाज पिक्ड अप बाय सचिन सावंत एंड सूरज भंडारी. एंड देन दे स्टार्टेड एंड दे एक्चुअली पिक्ड अप दिस वर्ड एंड उधर से वो हमको वैसे बॉ बुलाने लगे. एंड देन आई थिंक everyone started calling me Bob. But it is nothing to do with anything. I mean, I'm still surprised कि ये कहाँ से generate हुआ था ना. Because nowadays also रब्बी आते हैं, आप मैच को आते हैं, कभी कभी मैच देखने सचिन आते हैं. Everyone's call you बावा only. Yeah, it is because of that only. मतलब ये वैसा कुछ एक ऐसा टाइटल नहीं है. It is वो when I used to talk with my friend Sudhir, in our conversation वो बॉ करके एक वर्ड ऐसा आ जाता था कि हाँ अरे यार बॉ क्या वो हुआ यार, ये बॉ ये हो गया. तो आई एम श्योर these guys have picked up and then they started calling us. और कुछ. Sir, Ramakant sir told when you used to bowl, the only 3 sound used to come. Hey, Yeah. hey bug. So what was the strategy behind that? Actually क्या होता था, I mean when I used to bowl ना, तो जब ऐसा लगता था कि ये बॉल परफेक्ट पिच होने वाला है, व्हेन इट लीव्स द हैंड ना, पता वी कम टू नो ना कि हाँ ये बॉल जिधर मेरे को चाहिए था उधर ही पिच होने वाला है. तो वो जैसे पिच हो रहा था ये बिकॉज वो बैट्समैन को बीट करके वो कीपर के पास जाएगा ये श्योर था. तो वैसा वो जनरेट हो गया होता था, ऑटोमेटिकली वो होता था. ऐसा नहीं कि हमने वो उसको ये किया है, डेवलप किया है, ऐसा कुछ नहीं. वो ऑटोमेटिकली जब अच्छा पिचिंग होता था तो वो बॉल मुंह से तब वो ऐसा या घे पकड़ रख या ट्याव. आई ऑल्सो उस समय ऐसा ट्याव करके भी बोलता था. तो कि
इट वाज वन वे ऑफ टीजिंग पीपल, चिढ़ाते थे हम लोग ऐसा, अरे यार तेरे को मैंने बीट कर दिया टाइप्स। आफ्टर विनिंग अ टूर्नामेंट आप जब रिटर्न आते थे, जैसे रब्बी ने बताया, वेनिला आइसक्रीम, सही है। मुझे एक्चुअली ये याद नहीं है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं कि जीतने के बाद ही ऐसा, तो सी उस समय ऐसा था ना कि पैसे के लिए हम लोग कम खेलते थे। आई मीन वी यूज्ड टू प्ले फॉर प्रेस्टीज बेसिकली। ऐसा लगता था कि वहां गए तो ये टीम को हमको हरा के आने का, पैसे तो चलो ठीक है, पैसे आते रहेंगे उसमें, मतलब उस व्हाइल विनिंग वी यूज्ड टू गेट मनी, बट देन मनी वाज अ लीस्ट प्रायोरिटी फॉर अस। वी ऑलवेज यूज्ड टू प्ले फॉर प्रेस्टीज। मुझे ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रॉफी और पैसे मिलते थे, मतलब, और कभी कभी कि पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ ट्रॉफी मिलते थे, बट आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि अरे यार मेहनत रंग लाया। आई मीन आई यूज्ड टू गेट ट्रॉफी, पैसा नहीं मिला तो भी चलेगा, बट आई यूज्ड टू गेट ट्रॉफी। तो बट ठीक है, आई मीन दैट इज हाउ इट वाज। आई मीन वी यूज्ड टू ओनली प्ले फॉर प्रेस्टीज। तो पैसे का तो हमारे पास, बिकॉज आई वाज वर्किंग दैट टाइम, तो आई वाज सेल्फ सफिशिएंट। तो जब भी हम लोग बाहर से आते थे तो खाना पीना वैसा, दैट इज वन थिंग विच वी ऑलवेज एंजॉय। बाकी टीम का मुझे पता नहीं, हम लोग used to eat well, we used to I mean अभी जैसे आइसक्रीम, सपोज वापस आते समय अगर आइसक्रीम लेके आते तो आई मीन इट इज नॉट दैट कि हारने जीतने के बाद ही आता था, मे बी दैट उस समय वो ट्रेंड था कि हाँ चलो अभी घर पहुंचने वाले हैं तो एक आइसक्रीम लेके चलो चलते हैं, बट इट वाज नॉट दैट कि ऐसा। बट यस, हम लोग जीतते भी बहुत थे, तो शायद वो ट्रेडमार्क बन गया होगा, वो रब्बी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, बट देन ऐसा कुछ नहीं कि हम जीते और हमने आइसक्रीम लिया, ऐसा कुछ नहीं। सर अभी भी अबव 40 अबव 50 के टूर्नामेंट्स होते हैं क्या? अभी भी वो ठसन वाली मैचेस होते हैं? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट देन यस आई सी दैट इन आवर इंटर कॉलोनी टूर्नामेंट्स एंड ऑल। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये इतने जिद उनके पास है कि जीतना है, तो ये भी जिद रखो कि एक टीम बन के बाहर जाके जीत के आओ और अपना कॉलोनी का नाम रोशन करो। हमने बहुत रोशन किया, एक्चुअली बोलेगा ना तो हमने एक 8-10 साल तो तिलक नगर का नाम काफी रोशन किया था। आउट ऑफ बॉम्बे, जब हम लोग बॉम्बे के अंदर कहीं भी जाते थे ना, पीपल यूज्ड टू से अरे यार तिलक नगर का टीम आया प्रेस 11। तो आई वांट टू से कि आजकल के जो प्लेयर्स है दे शुड आल्सो डू दैट। ठसन रहना ही चाहिए आपस में, इधर ठसन नहीं, गो आउट, वहां पे दिखाओ अपना ठसन, साथ में खेलो, प्ले टुगेदर, एक टीम बनाओ, अच्छा टीम, बिकम द नेक्स्ट प्रेसी। सर तिलक नगर में बेस्ट टीम एट योर टाइम? प्लेबॉय एंड प्लेबॉय वाज अ वेरी गुड टीम। एंड टुडेज जनरेशन? I think there are some couple of teams, आदिल बॉयज, अभी मैं बहुत कम फॉलो कर रहा हूँ। आदिल बॉयज है, श्रेया लेवन है, काफी है ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई नो पीपल बाय फेस। ऐसा काफी लोगों को मैं नाम से भी नहीं जानता हूँ, बट देन है, अच्छे प्लेयर्स हैं, टीम तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट। आई थिंक सो लास्ट ईयर लगान हैज ऑर्गेनाइज्ड अ टूर्नामेंट, उसमें था प्रेसी एंड राहुल, ये मैच हुआ था। उस टाइम पे भी कुछ पुराने यादें ताजा करने के लिए चंद्रा के साथ एक ठसन चली थी, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ सर, Did we play? या कॉलेज में टूर्नामेंट हुआ था। हाँ क्या, मुझे याद नहीं, क्या मतलब क्या हुआ था? इफ यू कैन। चंद्रा के कुछ प्लेयर्स आए नहीं थे एंड यू टोल्ड दैट हम टॉस उड़ाएंगे अभी, अगर चंद्रा को वेट करना है तो हम नहीं करेंगे। वो पुराने टाइम पे भी ऐसा करता था, मींस वो तो, बट दैट वाज फैक्ट। हमको अगर हमारा प्लेयर समझो ट्रैवल करते समय अगर लेट हो गया तो चंद्रा भी नहीं मानता था,
सेम वे अगर चंद्रा का प्लेयर्स लोग नहीं आता था या फिर वो लोग कोई और टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसके कुछ प्लेयर्स और इधर आए नहीं है तो हम लोग भी रुकते नहीं थे उसके लिए. तो दैट हसन विल ऑलवेज बी देयर. आई मीन सी चंद्रा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. बट गेम के बाहर, व्हेन गेम के अंदर मैदान में जब हम लोग उतरते थे तो वी वर टोटल एनिमीज इन द सेंस हमको दोनों को भी जीतना है बस. बट यस, बाहर वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑलवेज. So what message you will give to today's generation and upcoming generation? Main thing is, if from cricket perspective, Yes, sir. so I would say that play your cricket मतलब ईमानदारी से. I mean you play one is you play dedicatedly, you should always be on time. Discipline is very important. I used to tell Ramesh अपना टीम में अगर what we used to do is the entire team used to come and wait at building number 2. So Ramesh used to give half an hour advance notice for them. I mean कि तुम आधा घंटा पहले आओ उसके बाद. So या फिर वो अभी समझो अगर अपने को 10 बजे जाना है तो people he used to say that everyone should come at 9:30 building number 2 के सामने. But I was the only one. He used to say कि देख सतीश 10 बजे को सब लोग निकलने वाले, and I used to be there. So discipline is very must and you have to follow that discipline. ये मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि when they organize a tournament, it should always be organized in a proper way. That is the reason why we appreciate RK Trophy. RK Trophy में टाइमिंग एग्जैक्ट टाइम पे मैच चालू होता था, एग्जैक्ट टाइम पे मैच खत्म होता था, उसके बाद देयर वाज अ गैप, नेक्स्ट मैच चालू. 8 ओवर का पूरा मैच. सो सेम वे आई वुड स्टिल से कि अगर 6 ओवर का टूर्नामेंट होता है तो इवन द फाइनल शुड बी 6 ओवर. आजकल क्या होता है, सेमीफाइनल 4 ओवर, फाइनल्स 2 ओवर. अरे यार क्या फायदा, दो बेस्ट टीम जब खेलता है सामने सामने, बिकॉज अच्छे टीम को हरा के वो फाइनल में आता है. फाइनल में आने के बाद अगर 2 ओवर खेला तो क्या फायदा हुआ. पहले अगर तुमने 2 ओवर खेला के फाइनल 6 ओवर का खिलाया तो स्टिल इट मेक सेंस. सो डिसिप्लिन इज अ मस्ट. दैट इज व्हाट आई वुड से टू द ऑर्गेनाइजर्स. सिमिलरली टू द प्लेयर्स ऑल्सो. खेलो ईमानदारी से, खेलो डेडिकेटेडली खेलो. आई मीन पैसे के लिए तो आजकल सब लोग खेलते ही हैं, नो डाउट, बट देन व्हेन यू प्ले फॉर योर टीम एक साथ खेलो. आई मीन ऐसा नहीं कि बैटिंग प्राइज अभी मुझे मिलने वाला है तो किसी को रन आउट किया, ऐसे सब नहीं होना चाहिए. आई मीन यू प्ले फॉर द टीम, नॉट फॉर योरसेल्फ. दैट इज वन मैसेज व्हिच आई वुड लाइक. डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज ऑन द which is top on the list. And last message for your fans and for all Tilaknagar members and all Mumbai cricketers. क्या बोलना है. मैं I think I am blessed. Cricket, when it comes to tennis ball cricket, I am blessed because I used to go when our team used to go and play in places like Bandra, Bhayandar, Thane. There were so many fans. मतलब ये तो अपना कॉलोनी का फैंस तो अलग, I mean it is वो अलग ही है. बट वहां पे भी हमारे इतने फैंस थे. They used to come only to watch us. वो बोलने के अरे यार यहाँ पे अभी अविनाश यादव आने वाला है, अजित पुत्रन आने वाला है, संतोष साटिलकर आने वाला है, सतीश शेट्टी आने वाला है, रमेश शर्मा आने वाला. मतलब वो पब्लिक आज के I don't know how to in today's matches and all how many people must be coming and watching it. उस समय तो हर मैदान used to be full. मुझे याद है बैंड्रा में literally when we won, literally the entire crowd came to the ground, you know, and to congratulate us. I mean, so many fans here, so many fans. I would only say that I am blessed कि मेरे पास इतना फैंस है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स मतलब जो opponents है, they are still good friend of mine. I think I can only say that I am blessed. That's it. As far as tennis cricket is concerned. आपने अभी सुना भी होगा ना कि इतना
वी ऑलवेज मैदान के अंदर हम लोग बहुत बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन जब बाहर आते थे तो वी आर ऑलवेज गुड फ्रेंड्स. Yes, really thank you. It was really an honor to take your interview today. Really thank you, sir. हम मिलते रहेंगे. I should thank the entire DSP team for this excellent initiative. I also would like to thank Sachin Sawant for bringing the entire DSP team together to create such an event. Thank you very much, and of course thanks to you also. Thank you, sir. Thank you. तर हे होते सतीश शेट्टी सर, ज्यांनी आपली पूर्ण जर्नी, फनीएस्ट मुवमेंट, काय काय लाईफ मध्ये चेंजेस आले त्यांच्या, कुठे कुठे त्यांनी गोलंदाजा मार्गात चेंजेस केले, हे सर्व आपल्यापर्यंत घेऊन आले, जुन्या आठवणी घेऊन आले. तर आपण भेटूया पुढील भागामध्ये. तोपर्यंत तुम्ही सर्व, लॉकडाऊन आहे, घरीच राहा, मास्क घाला, सुरक्षित अंतर ठेवा, घराबाहेर निघू नका, हीच माझी विनंती असणार आहे. तर आणि आमचं DSPL_टिळकनगर हे इंस्टा पेजला फॉलो करा. आणि पुढील भागात आपण कधी येणार आहोत, कुठल्या लेजंडला घेऊन येणार आहेत, ते आमच्या DSPL पेजवर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन येणार. आणि घरीच राहा, हीच माझी विनंती. थँक्यू, गुड नाईट, शुभरात्री.